हेलो। गुड इवनिंग वंस अगेन। नो, ये हम लोग ने रेसिप्रोकल प्रॉमिस का किया था लास्ट टाइम। टाइम मालूम नहीं है तो रीजनेबल टाइम में करने का, डे फिक्स है लेकिन टाइम मालूम नहीं है तो, है ना, तो फिर बिजनेस आवर्स में करने का। देन अगर प्लेस नहीं मालूम है तो प्रॉमिसर शुड कॉल एंड अप्लाई फॉर प्लेस। फॉलो दिस, ये किया था हमने। हाँ, 46, 47, 48, 49, 50, है ना, टेबल है ना अपने बुक में। Now, reciprocal promises to do things legal and also things illegal. First is a contract, but later is not a contract. If you make promises, some things which are legal and some things which are illegal, and legal can be separated from illegal, then to do things legal and also do things illegal. The first is a contract, but the latter is a void agreement, है ना। जैसे X promises to look after Y's legal business for rupees 10,000 and look after business for rupees 5,000 per month। क्या होगा ये? फर्स्ट एग्रीमेंट, फर्स्ट प्रॉमिस फॉर लीगल बिजनेस इज कॉन्ट्रैक्ट and other is but if legal and illegal cannot be separated, then in such a case entire agreement is void, है ना। फॉर एग्जाम्पल इसमें होगा एक्स promises to look after Y's legal and illegal business for rupees 15,000, तो entire agreement is void। एक में क्या बोला, 10,000 में लीगल काम देखूंगा, 5,000 में इलीगल, तो पहला वाला एनफोर्सेबल है, सेकंड वाला नॉट एनफोर्सेबल है। लेकिन कंबाइंड प्रॉमिस किया है, लीगल और इलीगल का कितना है पता नहीं है, सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो फिर इंटायर एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगी। फॉलो दिस। यस और नो? हाँ, अब है ना, time as an essence of contract. The phrase time as an essence of contract means that performance of contract, लिखना है, लिख लो। वेरी गुड मोहम्मद लोगन वाला, राइट इट।
Okay, see here. Time as the essence of contract. The phrase time as an essence of contract means that performance of contract within the stipulated time is a vital condition. मतलब see here. Time is the essence of contract. Time is essence of contract means performance of contract within stipulated time is a important condition of contract. समझा? Not performance of time is a vital condition. तो time is the essence of contract. मतलब time important है. Now अब है ना इसमें प्रॉब्लम ये है कि just because एक मिनट इसको अच्छी इंग्लिश में लिखेंगे तो merely time in contract does not make time as an essence of contract. जैसे मैंने बोला ये काम आप ये काम करके दो, 1 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, तो खाली टाइम मेंशन करने से टाइम एसेंस नहीं होता है. merely mentioning time in the contract does not make the time as essence of contract. ये बात समझ में आ रहा है? टाइम एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे होना चाहिए, बराबर. लेकिन जस्ट टाइम लिखा है ना खाली, हाँ, तो उससे टाइम एसेंस नहीं होना चाहिए. टाइम कैन बी मेड essence of contract by mentioning it that it is essence of contract. See, section 55 deals with the subject where time is essence of the contract and there is a failure to perform the contract within fixed time. The contract, so far as it remains unperformed, becomes voidable at the option of the promisee. He may rescind the contract and sue for breach. अगर टाइम एसेंस है तो, अगर टाइम एसेंस है, टाइम अगर एसेंस है and the contract is not performed, the promise is not performed in a fixed time, then the contract becomes voidable at the option of the promisee. He may rescind the contract and sue for breach. समझा? टाइम एसेंस है तो, लेकिन टाइम एसेंस कैसे बनेगा बाद में बताता हूं. पहले अगर टाइम एसेंस है तो, सी अगर टाइम एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, हमने बोला है टाइम इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा बोला है, तो फिर एक मिनट ना, देखो टाइम इज एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब टाइम इज इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट, या फिर टाइम में नॉट बी time is essence of contract, time is not essence of contract. Huh? If time is essence of contract, then performance of contract within time limit is
important. If it is not performed in within time limit, कब जब टाइम एसेंस है, the agreed party can avoid the contract, है ना? Means contract is voidable and the agreed party can also claim damages. हाँ, अब इसका एग्जाम्पल देता हूं, डरो मत. ये कब की बात है? जब टाइम एसेंस है. टाइम एसेंस है तो आपको दो रेमेडी है. एग्रीड पार्टी कैन व्हाट दे कैन डू, कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, टाइम इज नॉट एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब देखो, where the time is not the essence of the contract, failure to perform within specified time does not make the contract. It means that in such a case the promisee cannot rescind the contract and he will have to accept the delayed performance, but he would be entitled to claim compensation. See here, time is not the essence of contract. लिखना बाकी लिखना इसमें क्या लिखना होगा. If promise is not performed within time limit, तो क्या होगा? Agreed party कैंसिल वर्ड के बदले क्या लिखने का? कैंसिल के बदले rescind. Cannot rescind the contract, but can claim damages. Okay. क्योंकि टाइम एसेंस नहीं है, वो करता है ना तो बस कर रहा है कि नहीं. समझाइए. हाँ हाँ,
Damages can be claimed if it is not performed within the time limit or within reasonable time. Okay, no time is specified. Now see here. अच्छा अभी ना, हाँ अभी सुनो, if time is essence of contract, time essence था, but performance is delayed. If the promisee accepts delayed performance, मतलब देखो अगर मेरे को किसी ने बोला, मैंने बोला टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसने नहीं किया टाइम पे, लेकिन उसने डिले किया, तो फिर इफ द प्रॉमिसी एक्सेप्ट्स द डिलेड परफॉर्मेंस, इन सच अ केस द प्रॉमिसी cannot cancel the contract. तो ले रहा है ना, अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, तो ओके, nor can he claim damages. Okay, however, if the promisee, while accepting delayed performance, gives notice to the promisor about his intention, एक मिनट, हाँ, in such a case he can claim damages. See, बोलो क्या, एक मिनट क्या है, आंसर लिख दिया पूरा. See, if the time is essence of the contract but performance is delayed, मतलब डिले कर दिया, if the promisee accepts delayed performance, in such a case the promisee cannot cancel the contract, नॉन, अगर वो डिले वाला समझे, देखो मैंने एक आदमी को बोला कि देखो तुम्हें ना मेरे घर पे पार्टी है, तुम लोग है ना 7 और 7:30 के बीच में आइसक्रीम बेच देना, समझा, 7, और मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बरोबर, तो उसने ना 11 बजे रात को आइसक्रीम भेजी, तो मैं कैंसिल कर सकता हूं कॉन्ट्रैक्ट, है ना, और डैमेजेस भी ले सकता हूं. अभी अगर मैंने परफॉर्मेंस ले लिया, मैंने 11 बजे भी आइसक्रीम स्वीकार कर ली, इफ द प्रॉमिसी while accepting the delayed अच्छा, if the promisee accepted, in such a case the promisee cannot cancel the contract. अब मैं आइसक्रीम ले रहा हूं उसे 11 बजे, तो कैंसिल करने का सवाल किधर आता है, लेकिन मैं डैमेजेस भी नहीं ले सकता फिर. लेकिन अगर आइसक्रीम एक्सेप्ट करते टाइम, however if the promisee while accepting the delayed performance, अगर मैंने एक्सेप्ट करते टाइम बोल दिया था कि भाई साहब आपसे मैं डैमेजेस लूंगा, तो फिर मैं डैमेजेस ले सकता हूं. आई बात समझ में? हाँ, अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अभी ये कभी की स्टोरी है जब टाइम इज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल ऑन अकाउंट ऑफ प्रोमिसेस, if the contract is not void on account of promises failure to perform within the agreed time or within reasonable time,
as the case may be. And if the promisee, instead of rescinding the contract, accepts the delayed performance, है ना, he cannot afterwards claim compensation for any loss caused by the delay unless at the time of accepting the delayed performance is gives notice to the. अभी इन लोग ने सेम पॉइंट इन लोग ने कैसे लिखी है देखो, हाँ, तो ये भी सेम है और ये भी सेम ही, ओके, समझा ये, हाँ, हाँ, एक्सेप्ट करके डैमेजेस ले सकते हैं, लेकिन नोटिस देने का, एक्सेप्ट करते टाइम बोलने का कि मैं आपसे डैमेजेस लूंगा, हाँ, उस टाइम पे नोटिस नहीं दिया तो खत्म है, फिर नहीं ले सकते। हो गया ये, समझा सेक्शन 55। appropriation of payments, ये समझा, टाइम असेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, नहीं तुमने नोटिस दे दिया हो तो कभी एग्री नहीं करने वाला कि मैं डैमेजेस दूंगा। द promisor is never going to agree, you just give the notice and the court will decide damages मिलेगा कि नहीं। तुम लोग को ना सडनली लॉ में एकदम इंटरेस्ट आ जाता है, ऐसा सवाल पूछते हो तुम लोग, हाँ, तुम लोग एलएलबी क्यों नहीं करते हो? तुम लोग हमें 12th में बोलते हैं एलएलबी करो, सीए भी करो और एलएलबी करो। अभी था ना एंट्रेंस का डेट था 7 और 8 तारीख को, वापस फॉर्म भर सकते थे। ठीक है, कोई बात नहीं, टीवा की बात करना। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट मीन्स application of payment by creditor to the discharge of some earlier debt। देखो, debtor gives money to creditor, तो वो कौन सा appropriation means application of payment, debtor जो पेमेंट देता है ना उसको अप्लाई करने का, भाई तेरा पैसा आ गया, application by the creditor to discharge of some particular debt। when money is paid, it is applied according to the rule of the payer and not of the receiver। मतलब जब पैसा देते हैं ना, must be applied according to the rule of the payer and not the receiver। appropriation is right primarily of the debtor and for his benefit। appropriate किसका right है? debtor बोलेगा, समझो you have to take so much money from me different dates, तो है ना इसमें, see when say example, C has to take following amounts from D, rupees 5,000 due on 1st April, rupees 6,000 due on 1st May। ये ना, ये 2000 ईयर 2000 है, 1st April 2000 और लेके टेक इट 2008, 1st May 2009, हाँ, rupees 6,000 due on 1st June 2019, rupees 7,000 due on 1st July 2019। Now see here,
D pays rupees 6,000 against तो और डी बोल रहा है कि इसके लिए दे रहा हूं मैं, आई एम पेइंग यू फॉर दिस, तो फिर जो डेटर बोलेगा वही है ना। अप्रोप्रिएशन का रूल क्या है? अप्रोप्रिएशन शुड बी डन एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ डेटर। अगर वो बोलते हैं ये 6,000 ये इसमें से निकाल दो, तो जो है ना, और as indicated by circumstances, है ना। अगर सपोज से D pays ₹6,000 on 1st June, तो विदाउट एनी इंडिकेशन, तो फिर it should be appropriated against ₹6,000 due on 1st June। समझ में आ रहा है ये? देखो पहले क्या रूल है, appropriation should be done as per the instruction of the debtor or as indicated by circumstances, है ना। समझा ये? बोलो दिस। देखो एक सी को है ना, ये पैसे लेने हैं किससे? डी से। फ्रॉम डी ही हैज टू टेक सो मच मनी। डी पेज 6,000 अगेंस्ट अमाउंट ड्यू ऑन 1st May, तो फर्स्ट मे को उसने दिया 6,000, या उसने 6,000 दिया और बोला कि इसके अगेंस्ट करो, अगेंस्ट अमाउंट ड्यू ऑन 1st May 2009, बोला इसका 6,000 है ये। तो अगर उसने बोला इसका 6,000 तो फिर हम लोग ये 6,000 काट देंगे ना, उसने बोला वैसे, लेटर बोलेगा ये पैसा है तो वो पैसा काटेंगे हम लोग। अप्रोप्रिएशन शुड बी डन, हाँ, एज पर द इंस्ट्रक्शन। अगर वो नहीं बोलता है तो एज इंडिकेटेड बाय सर्कमस्टेंसेस, फिर हालात से। जैसे सपोज डी पे 6,000 ऑन 1st June, कुछ बोला नहीं, 1st June को 6,000 दिया, तो फिर तो हम लोग कहां डालेंगे इसके अगेंस्ट? देखो पहले उसने अगर 6,000 रुपये दिए, 6,000 दिए और उसने बोला कि ये 6,000 है, तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर ये 6,000 ही माइनस करेंगे। ये बात समझ में आई? यस और नो? अगर वो चुप रहा तो फिर सपोज उसने 6,000 दिया ऑन 1st June 2019 को दिया विदाउट इंडिकेशन, तो फिर ये इसका ही पैसा होगा ना। ये डी बोल रहा है कि हालात बोल रहे हैं? फिर हालात, है ना, बरोबर। पहले डी डेटर बोलेगा, फिर हालात। इफ
if debtor does not indicate and circumstances also do not indicate. So बोलो बोलो तो क्या होगा बताओ. Then creditor can appropriate as per his. फिर क्रेडिटर बोलेगा तुम नहीं बोलते तो मैं करता हूं. ओके. A creditor can appropriate amount even against टाइम बार डेप्ट. किसके अगेंस्ट? जैसे सी में अप्रोप्रिएट ₹5,000 अगेंस्ट 1 अप्रैल 2008 ड्यू, है ना, अगेंस्ट अमाउंट ड्यू ऑन. and appropriate and ₹1,000 against amount due on वो 5,000 इसमें से काटेगा, 1,000 उसकी मर्जी है. जब हालात भी नहीं बोल रहे हैं, डी भी नहीं बोल रहा है, हालात भी नहीं बोल रहे, तो फिर सी करेगा जो करने का, ना. समझा ये पॉइंट थर्ड वाला? बोलो, अरे बोलो हाँ या ना. ये आ गया ना. अच्छा. इफ, हाँ, इफ creditor also fails, क्रेडिटर भी फेल हुआ तो बोलो फिर क्या करेंगे? क्रेडिटर भी फेल हो गया, चलो क्या करोगे आप? तो appropriation will be done in order of time. Okay, follow this. If two debts are due on same date, then appropriation between them will be done on the will be done in proportion. Okay. समझा स्टोरी? टाइम से लेने का. अभी टाइम का तो सब डेट, अगर उसने 6, 5, 10,000 दिए होते तो 5 यहाँ 5 यहाँ, ऑर्डर ऑफ टाइम. ओके, तो ये लिखना है पूरा. हाँ लिख लो.
क्रेडिटर ने नहीं किया, उसमें एग्जाम्पल क्या फेल हो गया, उसने नहीं किया, क्रेडिटर बोलता है मैं रख दिया पैसा बस, तो फिर टाइम पे आएगा, अपने आप पहला वाला पैसा कट जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। प्रपोर्शन ऑफ अमाउंट टू बताता हूँ, हाँ सुनो बताता हूँ, पहले लिख लो। हाँ फिर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ये पहले लिख दो, लिख दिया तो पहले बताना। सी है, तो अगर तुम लोग को इसका चाहिए एग्जाम्पल चाहिए ना, तो सेम डेट का प्रोपोर्शन वाला एग्जाम्पल चाहिए, तो मुझे एक चीज ऐड करनी पड़ेगी, 8,000 ड्यू ऑन 1 जुलाई, है ना, ये और एक सेम डेट पे लाना पड़ेगा ना दो को, तब तो मैं कर पाऊंगा। हाँ 17, 17, 17 एंड 15, 32। हाँ अभी सपोज है ना, एग्जाम अमाउंट ड्यू का एग्जांपल दे रहा हूँ, इन रेशियो ऑफ अभी, हाँ बताऊँ से, लेकिन एक सपोज एग्जांपल, सपोज डी पेज रुपीज 24,500, एक मिनट हाँ 2C है ना, नाइदर डी नॉर सी अप्रोप्रिएट्स, इन लोग ने किसी ने अप्रोप्रिएट नहीं किया। हाँ तो क्या करेंगे, 5,000 कभी देंगे, फर्स्ट अप्रोप्रिएशन किसके आएगा, 5,000 जाएगा, फिर 6,000 जाएगा, है कि नहीं, फिर 6,000 जाएगा, टोटल 17,000 हो गया, ये 3 चले जाएंगे ना, 5 6 6, अब ये 15,000 है, ये दोनों सेम है ना, बैलेंस इज हाउ मच,
7,500 अप्रोप्रिएट करने हैं बाकी, है ना। अभी वो कैसे करेंगे? आपको मोबाइल में बैलेंस चेक करना था, किसी पेरेंट ने भेजा 36,000। हाँ आया है। इन द रेशियो ऑफ हाँ 7:8। समझा? अपने बुक में भी एक एग्जांपल दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में। ओके, मतलब ₹3,500 and ₹4,000। ओके, हाँ, ये इसमें से 3.5 निकल जाएगा और इसमें से 4,000 निकल जाएगा। As per section 1359, when a debtor owing several distinct debt, scroll up, very good. Now, see here, ये सब वही स्टोरी है। As per section, when a debtor owing several distinct debt indicates at the time of actual payment that the payment should be applied towards the discharge of a particular debt, the creditor must do so. तो debtor ने बोला तो creditor must do so. If there is no clear instructions from the debtor, but the circumstances of the case imply that the payment should be applied to a particular debt, then the accepted payment must be applied accordingly. मतलब circumstances लिखने का, अगर accept किया था, if the debt is to be discharged is not indicated, if the debtor does not indicate, then the creditor may apply the payment at the discretion. He cannot, however, apply payment to a disputed or unlawful debt, but he may apply it to a debt which is barred by the law of limitation, है ना। अनडिस्प्यूटेड पे नहीं कर सकता है, बट टाइम बार्ड पे कर सकता है, जो उसका टाइम लिमिट हो गया ना उस पे भी कर सकता है, वो ले सकता, क्रेडिटर के हाथ में गया तो। When the debtor does not indicate and the creditor fails to appropriate, payment shall be applied in discharge of debt in the order of time. If the debts are of the same date, payment should be applied in discharge of each proportionately. आया समझ में? Assignment means transfer of transfer. Rights and liabilities of a party to a contract can be assigned under certain circumstances. Assignment may occur by the act of the parties or by operation of law. Assignment मतलब अपनी राइट्स एंड लाइबिलिटीज दूसरे को ट्रांसफर करना। राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट is to be transferred to others. That is called assignment. Okay, assignment may occur by act of the parties or by operation of law. अगर parties agree करते हैं तो
है ना, मतलब दोनों पार्टी एग्री करनी चाहिए। जैसे मैंने एक टूर बुक किया यूरोप जाने का, फिर मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगा, दूसरा कोई आएगा अभी मेरे बदले, तो मेरे राइट से जाने का मैंने दूसरे को असाइन कर दिया, है ना, तो वो एक्ट ऑफ द पार्टी से हुआ। ऑफ कोर्स टूर वाला एग्री करना चाहिए ना। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल कैन नॉट बी असाइंड। पर्सनल स्किल के कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट टू पेंट अ पिक्चर, कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी, ये सब असाइन नहीं कर सकते। द बर्डन ऑफ लाइबिलिटीज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी असाइंड। लाइबिलिटीज असाइन नहीं कर सकते, एग्री होना चाहिए पार्टी, नया कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जिसको अगर हम लाइबिलिटी किसी पे लाद रहे हैं तो असाइन नहीं कर सकते अनलेस दैट पार्टी एग्रीज, तो देयर इज नोवेशन न्यू कॉन्ट्रैक्ट। किसी के ऊपर लाइबिलिटी नहीं डाल सकते ऐसे ही, एक्स और वाई बोलते हैं हाँ सब लाइबिलिटी जेड के ऊपर, तो ऐसा नहीं, जेड एग्री होना चाहिए ना। राइट्स एंड बेनिफिट्स अंडर कॉन्ट्रैक्ट कैन बी असाइंड, राइट्स कैन बी ऑलवेज असाइंड बट लाइबिलिटीज कैन नॉट बी असाइंड। हाँ, नोवेशन मतलब क्रिएटिंग ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट, नया कॉन्ट्रैक्ट बनाने का। डिस्प्यूटेड डेप्ट मतलब वो डेटर बोलते हैं डेप्ट है ही नहीं भाई, या फिर अनलॉफुल है, वो डेप्ट लेने का ही नहीं है। मैंने समझो एक आदमी ने पैसा दिया तो मैंने बोला और एक पैसा बाकी था, चल ये सब जाने दे, ये तो रहेगा ही, और एक पैसा तेरा 50,000 बाकी था उसमें से एडजस्ट करता हूँ, तो डिस्प्यूटेड वाले भी नहीं डाल सकते। डिस्टिंक्शन बिटवीन सक्सेशन एंड सक्सेशन इज कॉस्ट, असाइनमेंट समझा, हम लोग अपने राइट्स और कॉन्ट्रैक्ट दूसरे को दे रहे हैं, हाँ वी से, हाँ सक्सेस, लेकिन उसको फिर ऐसा बोलते नहीं, कैन वी से सक्सेशन इज असाइनमेंट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते हैं। असाइनमेंट असाइनमेंट ही होगा, असाइनमेंट एक्ट ऑफ पार्टी से भी होता है और कोर्ट के ऑर्डर से भी होता है। जब कोर्ट के ऑर्डर से असाइनमेंट होता है कि भाई अभी इसके बदले ये करेंगे, तो वो ऑपरेशन ऑफ लॉ से हो जाता है। हाँ, सक्सेशन इज कॉस्ड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, वेयर एज असाइनमेंट इज बाय डेलिबरेट एक्शन ऑफ ए इंटरेस्टेड पर्सन। ओके, ठीक है, तुम लोग इसको सक्सेशन मानो, ओके, ऑपरेशन ऑफ लॉ से, ओके, पर ऐसे वर्ड यूज नहीं करने का होता है। हाँ, मतलब वो ऐसे सक्सेशन को हम ऐसे नहीं बोल सकते असाइनमेंट बाय लॉ। हाँ, समझो उसका वर्ड क्या है, सक्सेशन ही फिर। हाँ, ये यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए ऐसे, ऑपरेशन ऑफ लॉ, सक्सेशन हमेशा ऑपरेशन ऑफ लॉ से ही होता है। हाँ, जैसे मैं बोलूंगा मैं तुम लोग का ना मैसेज भेजा था मैंने, ये रियल में केस हुआ था, एक आदमी ने मेरे को मैसेज भेजा, तो बोला, मैंने बोला आपको मैंने बोला और आपने मैसेज ही नहीं मेरे को दिया। बोला मैंने दिया मैसेज आपको। बोला कहाँ दिया मैसेज? व्हाट्सएप पे देखा मैंने, तो बोला उधर नहीं, उधर देखो उधर। मैं किधर? बोला फेसबुक के व्हाट्सएप पे। अब फेसबुक का व्हाट्सएप मतलब मैसेंजर, तो ऐसे नहीं बोल सकते ना फेसबुक का व्हाट्सएप जाके देख। हाँ, ऐसे ऐसे नहीं है, उसका नाम मैसेंजर है ना, तो हम बोलेंगे सक्सेशन, सक्सेशन है, इज ऑपरेशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। असाइनमेंट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ डजंट बिकम सक्सेशन। बोलो, अच्छा असाइनमेंट इज, तुम लोग खाली याद रखने का, सक्सेशन इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, वेयर एज असाइनमेंट, जैसे एक आदमी गुजर गया तो उसकी जो संपत्ति है उसके बच्चे के पास जाएगी, लेकिन जो लायबिलिटीज है ना वो भी बच्चों के ऊपर जाएगी, मालूम है तुम लोगों को? लेकिन बच्चे लोग पर्सनली लायबल नहीं है, जितना एसेट मिला है उससे लायबिलिटी अगर ज्यादा है तो फिर बाकी का लायबिलिटी गया।
सक्सेशन ट्रांसफर्स टू द सक्सेसर, हाँ इनहेरिटेड होता है ना, हाँ liabilities to the extent of property inherited, very good. Succession transfers to the successor both the rights and liabilities of the deceased to the successor. The amount of liability falling on the successor cannot be more than the assets inherited by him, but in case of assignment only things transferred which are desired by the assigner, है ना, सब ट्रांसफर नहीं होता है ना, जितना असाइनर बोलेगा वही। मेनली चीज क्या है, सक्सेशन इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ एंड असाइनमेंट इज अ डेलिबरेट एक्शन, बस। और ये लोग का मतलब होता है ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ राइट्स एंड लायबिलिटीज। आया चैप्टर समझ में? इनहेरिटेड बाय हिम मतलब विरासत में मिला है, वारिसदार है वो। थोड़ा तो समझ में आया कि नहीं? अभी है ना इसमें ये थोड़े चैप्टर मिक्स हो गए हैं। इसमें एक ही क्वेश्चन, एन्यूमरेट द प्रोविजंस that may be followed to performed, section 40 परफॉर्मेंस हिमसेल्फ किया था ना, कि अगर पर्सनल स्किल का है और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि वो ही परफॉर्म करेगा तो फिर वही परफॉर्म करेगा। एजेंट भी कर सकता है, मर गया तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है, थर्ड पर्सन कर सकता है अगर प्रॉमिस एग्री करे तो, और जॉइंट प्रॉमिसेस में से कोई भी कर सकता है। हाँ ये ना, ये दूसरे चैप्टर का है, सो विल डू लेटर ऑन ना डैमेजेस का, और ये मिस्टेक का है। ये फ्री कंसेंट का है। विजय एग्रीज टू विथ सैनी टू सेल इज ब्लैक हॉर्स अननोन टू बोथ द पार्टीज, द हॉर्स वाज डेड। तो ये म्यूचुअल मिस्टेक है ना, दोनों को मालूम नहीं था कि हॉर्स मर चुका है। An agreement under a mistake of a fact are void. In this case, there is a mistake of fact as the existence of the subject matter with respect to selling of horse. It is unknown to both the parties. Therefore, it is a void agreement. Mr. agrees to write a book. After few days, X dies. तो ये क्या है? A contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. ये void contract हो गया ना, मर गया तो impossible हो गया ना। In the present case, X agrees to write a book. After few days, X dies. Here the contract is void because due to impossibility of performance. ये ना थोड़े दूसरे चैप्टर के आगे हैं। ये सेम ए रिसीव्ड सर्टन, ए रिसीव्ड, देखो ये मैं बता रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, सुनो। फर्स्ट क्वेश्चन हमने फर्स्ट ही किया था, ये हु कैन परफॉर्म इट। फिर सेकंड इज फ्रॉम अदर चैप्टर, थर्ड इज फ्रॉम फ्री कंसेंट, वी हैव डन दिस। फोर्थ इज अबाउट डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन हम लोग समझते कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। नो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन नॉट परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल नेचर। मैं अमिताभ बच्चन को साइन करूंगा मूवी के लिए और वो गुजर जाएगा तो क्या करूंगा बताओ? उसका वकील को एक्टिंग कराऊंगा मैं, पब्लिक आएगी देखने इसके लॉयर ने कैसे एक्टिंग की है। तो फिर है पर्सनल वाला, नॉन पर्सनल वाला लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है ना, ये पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा ये फोर्थ हो गया। A received certain goods from B and promising to pay rupees 1 lakh. Later on, A expresses inability to make payment to C and to make payment. C, who is known to A, makes the payment 60,000. अब है ना उसने, Here are some results from a search.
सी ने उसको ए को पैसा दे दिया. नाउ ए इज नॉट सॉरी बी को पैसा दे दिया, है ना. ए ने माल खरीदा बी से 1 लाख का, बोला बाद में दूंगा, एंड ही वॉज अनेबल टू पे. सो सी who is known to A pays 60,000 to B. However, A is not aware. Now B is intending to sue for 1 lakh. Can B sue for 1 lakh? No. If the promisee has accepted payment from third party से कुछ पेमेंट लिया है, कुछ सेटिस्फेक्शन लिया है, तो खत्म ना. हाँ 40,000 के when the promisee accepts performance of the promisee from third person, he cannot afterwards claim. When the promisee accepts the performance of the promise from third person, he cannot afterwards enforce it against the promiser. That is, performance by stranger accepted by the promisee produces the result of discharging the promiser. समझा? Although the latter was neither authorized nor ratified the act of the third party. Therefore, in the present case, instance B can sue only for the balance amount and not for the whole amount. पूरा नहीं कर सकता है. फिर ये हॉर्स वॉज डेड खत्म. और ये क्वेश्चन है ना, ये भी डैमेजेस का है, गलती से आ गया इसमें. ओके, फॉलो दिस. Discharge of contract. See here, discharge मतलब अभी कॉन्ट्रैक्ट का 10वां चैप्टर विसर्जन है ना. गणपति बापा का भी 10वें दिन विसर्जन होता है ना, वैसे ये 10वां चैप्टर है कि नहीं. When obligation created by contract comes to an end, contract is said to be discharged or terminated. What is discharge? Contract creates obligation. हमारा पहला लेक्चर था obligation से शुरू होता है. अभी है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट्स ऑब्लिगेशन खत्म हो जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म. A contract may be discharged or terminated in any of the following ways. First, discharge by performance, मतलब उसने काम किया. दूसरा, discharge by attempted performance, टेंडर है ना. attempted performance को क्या बोलते हैं? टेंडर. और टेंडर should be valid. It should be of full thing. It should be done at an appropriate time and place. डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट. तो एक तो परफॉर्मेंस होता है, एक अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, और एक होता है डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट. देखो जैसे हम लोग ने ना एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि एक मैंने कार वाले को बोला कि तू मुझे पूरा इंडिया घुमाएगा, 2 लाख रुपए दूंगा. तो उसने पूरा इंडिया में मेरे को घुमा के आया, बहुत बहुत जहां जहां जगह बोला था. तो डिस्चार्ज हो गया कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस. वो आया और मैंने बोला नहीं जाने का, तो बोला मैं तो तैयार हूं, तो भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया बाय अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. अब तीसरा एग्रीमेंट, हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट किया पूरा इंडिया घूमेंगे. मैंने बोला नहीं, इंडिया नहीं जाऊंगा, वी विल मेक ए न्यू एग्रीमेंट. अभी हम लोग 5 जगह पे जाएंगे, पूरी इंडिया नहीं घूमेंगे, तो नया कॉन्ट्रैक्ट बनाते चल, है ना. तो नोवेशन. मैंने बोला इंडिया जाएंगे लेकिन ऑल्ट्रेशन करेंगे थोड़ा, इंडिया ही घूमेंगे लेकिन पैसे का चेंज करेंगे. मैं 2 लाख नहीं दूंगा, मैं 1,90,000 दूंगा. तो ये क्या किया? ऑल्ट्रेशन.
ऑल्ट्रेशन किया तो भी ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट जो था ना 2 लाख वाला वो तो खत्म हो गया ना, समझा? ये नोवेशन, ऑल्ट्रेशन। फिर रेमिशन, मैंने आधा इंडिया घुमा और छोड़ दिया उसको, हाँ समझा? हाँ। रिसेशन क्या है? हम दोनों ने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसल। वेवर मीन्स मैंने बोला मेरे को जाना ही नहीं है, ओके। मर्जर, मैंने उसकी कार ही खरीद ली हमेशा के लिए, ओके। तो क्या होगा ये अलग अलग मेथड से कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है। नोवेशन मीन्स व्हाट? ये होता है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, उसने आके इंडिया घुमा लिया मुझे। डिस्चार्ज बाय अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस मतलब ही वाज रेडी बट आई डिड नॉट टर्न अप, फिर मैंने बोला नहीं अभी बस मेरे को नहीं जाने का, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट खत्म। हाँ, डैमेजेस देंगे मेरे को लोग, म्यूचुअल एग्रीमेंट, अब दोनों एग्री करते हैं, both of the parties agree that forget about this contract, we will create new contract. New contract may be between same parties or different parties. Novation occurs when a new contract is substituted by for an existing contract either between the same parties or between different parties. जैसे मेरा और वो कार वाले का कॉन्ट्रैक्ट था, तो मैं नहीं जाता हूँ, तू इनको लेके जा दूसरे लोगों को, तो एग्री हो गया। और नया एग्रीमेंट बनाया, उन लोग ने बोला हमको पूरी इंडिया नहीं घूमना है, हमको आधा इंडिया घूमना है और हम लोग इतना पैसा देंगे। तो न्यू कॉन्ट्रैक्ट में भी बिटवीन सेम पार्टीज और बिटवीन अदर पार्टी डिफरेंट पार्टीज। इन नोवेशन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड। इन न्यू पार्टी कॉन्ट्रैक्ट देयर में बी सेम पार्टीज और डिफरेंट पार्टीज। आया समझ में नोवेशन? एवरीबडी हैज फॉलोड नोवेशन? हाँ कि ना बोलो। Alteration. Alteration of a contract means change in one or more of the terms of the contract. हाँ, terms change किया। Alteration is valid if it is done with the consent of the parties to the contract. In alteration, there is a change in the terms of contract, but no change in parties. Parties वही रहेंगी, terms change होंगे। In novation, there may be change of parties. नोवेशन में पार्टी, इसमें टर्म्स चेंज करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली वही रहता है और इट शुड बी कंसर्न्ड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टी, सब लोग एग्री करने चाहिए। ऑफ कोर्स वो तो ऊपर ही लिखा है, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। रेमिशन मींस एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर अमाउंट और लेसर डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस देन व्हाट वाज ओरिजिनली कॉन्ट्रैक्टेड फॉर, है ना। नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर रेमिशन। रेमिशन के लिए कुछ कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। Recession means when parties to a contract agree to dissolve the contract. हम लोग के कॉन्ट्रैक्ट बंद कर देते हैं, आगे कुछ नहीं करेंगे, ना नया कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे ना ऑल्टर करेंगे, है ना। In this case, recession only old contract is cancelled and no new contract comes to exist. The parties come out of the contract by mutual agreement. Waiver. Waiver means abolishment of the right. Party A to a contract may relinquish his rights under the contract. Thereupon, अगर मैंने पूरा ही छोड़ दिया कि मेरे को नहीं चाहिए, पूरा वेवर कर दिया तो, है ना, समझा ये स्टोरी, मेरे को जाना ही नहीं। चल, when superior rights or inferior rights may coincide and meet in one and the same person, है ना। जैसे मैंने कार ली 30 डेज के लिए, फिर वो कार ही मैंने खरीद ली, तो क्या अभी हायर भाड़ा दूंगा क्या उसका मैं? फिर मैं एक दिन के बाद मुझे कार बहुत पसंद आई, मैंने खरीद ली, तो द इंफीरियर राइट वैनिशेस इनटू द सुपीरियर राइट, दिस इज नोन एज मर्जर। कार टेकन ऑन हायर फॉर 30 days ₹6,000 but purchased from owner after using it for 20 days, okay। अभी याद रखना, NA
RRWM, क्या है ये? डिस्चार्ज. फॉलो दिस. हाँ, अभी डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो दो ब्रीच होते हैं, एक्चुअल ब्रीच और एंटीसिपेटरी ब्रीच, है ना. फिर डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, और ये इम्पॉसिबिलिटी और फ्रस्ट्रेशन, खत्म पे. हाँ, टेनेंट परचेस करता है. हाँ, जस्ट अ मिनट. हाँ, हेलो हेलो. नाउ डिस्चार्ज. देखो, अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, काम नहीं किया, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट खत्म, लेकिन हम डैमेजेस लेंगे. कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अभी वो काम वाम करने की बात छोड़ दो, है ना. व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन बाय one party, the other party or parties are freed from the obligation. जैसे मैंने एक आदमी को बोला कि तू है ना हमारे घर पे आके तू पेंटिंग करेगा, और वो नहीं आया, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया कि नहीं? हम लोग क्या पैसा देंगे क्या उसका? अच्छा, breach of contract may arise in two ways. What are they? Present breach or anticipatory breach. Now see here. Breach, discharge by breach में तुम लोग लिखाता हूँ. हाँ, इसमें क्या है? Discharge by breach. Breach of contract means not performing the promise. काम जो प्रॉमिस बोला वो नहीं करेगा, है ना. जैसे X agrees to sell his horse to Y. Okay. Now, later X refuses to sell the horse. नहीं दूंगा बोलता है बाद में. So it is breach of contract by X, है ना. Now breach is of two types. Suppose यहाँ पे अगर हम डेट डालें, suppose X was to sell horse on 25th July, but on 15th July he informs Y that he will not sell horse to Y. ये समझा? पहले उसने कभी कभी बोल दिया 25 तारीख को बेचने वाला था, लेकिन 15th को बोल दिया कि मैं नहीं बेचूंगा. वेरी सिंपल एग्जांपल. तो क्या होगा? दिस इज एंटीसिपेटरी ब्रीच. ये क्या है? एंटीसिपेटरी ब्रीच है. दिस इज एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. आया समझ में कि नहीं? हाँ, अभी इफ X informs Y on 25th July that he will not sell
horse to y, तो it becomes what? Actual breach. आया समझ में? 25 को बोला तो anticipatory breach takes place when? Before the due date of contract, है ना? Before the date on which performance is due. Actual breach कभी होता है? बोलो बोलो, कभी होता है? At the time when performance is due और during performance. आधा काम करके भाग गया तो भी ब्रीच हुआ कि नहीं? ड्यूरिंग परफॉर्मेंस. आया समझ में? डेट ऑफ परफॉर्मेंस, टाइम ऑफ परफॉर्मेंस लिख देने का. क्या लिखने का? ओके. Now remedies for anticipatory breach. The promisee or agreed party may treat the contract as cancelled on date of anticipatory breach and claim damages. है ना? For example, Y can treat the contract as cancelled and claim damages on 15th July itself. समझा कि नहीं? 15 जुलाई को उसने बोल दिया कैंसिल हो गया, जाओ. हाँ, और मैं डैमेजेस लूंगा. और the agreed party can wait till actual breach takes place. मतलब Y ना कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करेगा. Y में not cancel contract Y may not cancel the contract on 15th, but wait till 25th. That is actual day of performance. समझा कि नहीं? ये लिखो पूरा. लिख रहे तुम लोग? लिख लो पूरा इतना आराम से.
हो गया लिख के? भाविया हो गया लिख के? लिख लिया? डन. अच्छा, ओके, वेरी गुड. हाँ, नो ये ना 15 तक वेट करेगा. नो इफ एक्स वाई does not cancel contract on 15th June, 15 June is July, sorry, yeah, and chooses to wait till 25th. Okay, 25th July तक वेट करेगा, which is due date of performance. If Y does not cancel the contract on 15 July and choose to wait till 25th July, which is due date of performance, है ना, तो क्या होगा? 25 तक वेट करेगा बोला. Okay, now if in between, if due to some event performance becomes impossible, तो परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल होगा तो क्या करेंगे फिर? Then the defaulting party is discharged. For example, Y waits till 25th July. On 20th July, 20 जुलाई को क्या हुआ? Horse dies. क्या होगा बताओ? The contract comes to an end and Y cannot claim damages. समझा? देखो एक क्या रेमेडीज. The promisee or agreed party may treat the contract as cancelled on the and claim damages. है ना? एक तो भाई कॉन्ट्रैक्ट आज ही कैंसिल कर दो, हाँ, और डैमेजेस दे दो भाई, हम 15 को ही कैंसिल है भाई. और द एग्रीड पार्टी कैन वेट टिल द एक्चुअल ब्रीच. अरे 25 होने दे, बाद में कैंसिल करूंगा. वाई may not cancel the contract on 15 but wait till 25th. If Y does not cancel the contract on 15 July and chooses to wait till 15 July, which is a due date for performance, if the due date due to some event performance becomes impossible, so then the defaulting party is discharged. छूट गया, X छूट गया क्या? और फिर एक्चुअल, ये तो एंटीसिपेटरी ब्रीच में दो ऑप्शन है, और एक्चुअल ब्रीच होगा तो क्या करोगे? अब ये देखो, ये पूरा लिखा हुआ है. Actual breach of a contract occurs when during the performance of the contract or at the time of when performance of the contract is due, one party either fails or refuses to perform. Actual breach means not performing the obligation when the performance is due. जिस दिन due था उस दिन नहीं किया. Anticipatory breach when a party before the time of performance becomes due announces that he is not going to work for the contract, or when a party by his own act disables himself from performing the contract. ओके, पूरा लिखा नहीं है स्टोरी इसमें, लेकिन ये मैंने पूरा लिखा दिया तुम लोग को. हाँ, ये लिखा है तुम लोग ने ना? हाँ, कुछ बोलो बच्चों. अच्छा, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, डेथ, insolvency, merger, lapse of time, and what? Unauthorized alteration. Death, personal contracts,
contracts of personal nature are discharged. इंसॉल्वेंसी से भी है ना, once a person is तो क्या होगा, all old contract comes to an end. एक आदमी है ना, जैसे मैंने एक बैंक से लोन लिया, जैसे विजय मल्ल्या ने लोन लिया है, ये किया है, सब किया है, तो अगर उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया ना और फिर सेटलमेंट होती है, तो फिर पहले का सब भूल जाने का. मर्जर, लैप्स ऑफ टाइम, टाइम खत्म हो गया. अनऑथोराइज्ड मटेरियल ऑल्टरेशन, वेयर अ पार्टी मेक्स unauthorized alterations in the agreement or contract, so contract is discharged by operation of law. आया समझ में? टाइम हो गया. मर्जर, मर्जर मतलब क्या, इंफीरियर राइट, एग्जाम्पल ऑफ अनऑथोराइज्ड ऑल्टरेशन, जैसे है ना, आई टोल्ड यू आई विल सप्लाई यू 100 kgs ऑफ राइस, 1000 kg ऑफ राइस एट अ सर्टन प्लेस, फिर तुम लोगों ने जगह चेंज कर दी बगैर मेरे को पूछे, केजीज चेंज कर दिया, राइस के जगह दूसरा कुछ लिख दिया, तो ये मटेरियल ऑल्टरेशन होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? अनऑथोराइज्ड मटेरियल ऑल्टरेशन, मतलब मेरे बगैर पूछे तुमने कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर दिया, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया. ओके, नाउ सब्सिक्वेंट और सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी. देखो, इम्पॉसिबिलिटी है ना, इम्पॉसिबिलिटी एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इम्पॉसिबिलिटी अराइजिंग, तो ये क्या है, सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, सेक्शन 51 में, कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया तभी इम्पॉसिबल था, लेकिन बाद में इम्पॉसिबल हुआ, बाद में हुआ ना, तो उसको सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी बोलती हैं, फ्रस्ट्रेशन बोलती हैं. क्या बोलते हैं उसको, समझा? व्हेन इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस arises after entering into a contract, the contract is becomes void. Okay, it ceases to be follow this. For example, A has taken a railway pass. ए ने रेलवे पास लिया है फॉर 3 months, तो रेलवे ने बोला 3 महीना हम आपको रेलवे में अलाउ करेंगे. आफ्टर 1 month क्या हुआ बताओ, लॉकडाउन इज अनाउंस्ड and trains are not functioning. ये क्या होगा, दिस इज सुपरवीनिंग
pre-contractual, a contract which is 56 over section 8. The 56 है. A contract which at the time of entering into is impossible to perform is void ab initio and creates no rights and obligation. An agreement to do an impossible act is void. A contract which is at the time of entering into was capable of being performed may be subsequently become impossible to perform or unlawful. बाद में unlawful हो गया. In such a case, the contract becomes void. This is known as doctrine of supervening impossibility. It is also known as the doctrine of frustration. इसका दूसरा नाम है frustration. Frustration occurs when it is established that due to subsequent change in the circumstances, the contract has become impossible or it has been deprived of commercial purpose. A contract to do an act which after the contract is made becomes impossible or by reason of some event which the promisor could not prevent, unlawful, becomes void. When it becomes, तो मतलब बाद में impossible हुआ तो भी हम कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी में आकर इन द फॉलोइंग वेज. कैसे होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर. जैसे हॉर्स ही मर गया तो समझा, एक्स प्रॉमिसेस टू सेल हॉर्स, लेकिन हॉर्स मर गया तो बाद में मर गया. चेंज ऑफ लॉ, हॉर्स बेचना अलाउड ही नहीं है अभी. एक्स ने प्रॉमिस किया वाई को हॉर्स बेचूंगा, बाद में गवर्नमेंट ने बोला हॉर्स नहीं बेच सकते. द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बिकम अनलॉफुल बाय सब्सिक्वेंट चेंज इन लॉ. इन सच अ केस ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड. तो लॉ के कारण हो सकता है, सब्जेक्ट मैटर, फेलियर ऑफ प्री कंडीशंस. व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन स्टेट ऑफ थिंग्स, द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज. हाँ, ये तुम लोग को मालूम एग्जांपल है, एडवर्ड 7 या एडवर्ड 8 का. हाँ, ये बता दो कैसे समझो ना. ये इसमें तुम लोग अपने बुक में दिया हुआ है. कोरोनेशन प्रोसेस. एक आदमी ने शिप हायर किया था. मैं बता रहा हूँ, 2-3 एग्जाम्पल बता रहा. एक आदमी ने शिप हायर किया क्योंकि किंग का कोरोनेशन प्रोसेस होने वाला था. हाँ, प्रोग्राम था पूरा उधर और बहुत सारी शिप्स आने वाली थी, लेकिन उसके इलनेस की वजह से एडवर्ड 6, एडवर्ड 7 ऐसा कुछ है. ये लोग की हिस्ट्री अच्छी होती है ना बहुत, है ना. फॉरेन वाले के नाम अच्छे होते हैं, पहले से वो लोग नाम ऐसे रखते थे कि ना लुइस 1, लुइस 2, लुइस 7, लुइस 16. तो बच्चों को पढ़ने में तकलीफ नहीं हुई ना. अपने को याद करना बहुत मुश्किल होता है ये सब शाहजहां, ये वो अकबर, चंद्रगुप्त, ये लुइस 16, लुइस 18, लुइस 13, लुइस 14 सीधा लाइन से झंझट ही नहीं है ना. कोई पूछेगा लुइस 14 का बाप कौन था, लुइस 13 ही होगा ना. और को मैंने कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस. अभी क्या है कि वो प्रोसेस ही खत्म हो गया. वो शिप कोरोनेशन प्रोसेस और जो समारोह था वो खत्म हो गया, कैंसिल हो गया. तो अब क्या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? अब वो शिप में जाने का कोई मतलब है क्या? नहीं. सपोज से एग्जांपल बताता हूं. सपोज से वानखेड़े स्टेडियम पे आईपीएल होने वाला है, सॉरी वर्ल्ड कप फाइनल होने वाला है. ओके, अब टिकट एकदम फुल है. तो तुम लोग ने ना व्हाट यू डिड, तुम लोग बाजू की एक बिल्डिंग है बहुत बड़ी, वहां से पूरा स्टेडियम दिखता है खेलते हैं. तो तुम लोग ने स्टेडियम वालों को बोला, बिल्डिंग वालों को बोला कि हम लोग है ना बिल्डिंग के ऊपर टेरेस पे खड़ा रहने का जाके. तो बिल्डिंग वालों ने बोला 1000 रुपये लेंगे खड़ा रहने का उधर. ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं बिल्डिंग पे खड़ा रहूंगा मैच देखने के लिए और तुम लोग मेरे को 1000 रुपये देना. बिल्डिंग में अलाउ करेंगे 1000 रुपये में खड़े रहने को, हाँ, व्यू करने को मैच. अभी मैच कैंसिल हो गया सपोज, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा क्या? वो
क्योंकि तो बोलेगा हमारा टेरेस से खड़े है, 1000 रुपये ले और खड़े रहे 3 घंटे 4 घंटे, जितनी देरी खड़ा रहने का 1000 रुपये दे, तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा। क्यों? बिकॉज द ऑब्जेक्ट वॉज when a contract was entered into on the basis of continued existence of certain state of things, it was on the basis of test match existence of certain state of things. The contract is discharged if the state of things change, है ना? क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या था कॉन्ट्रैक्ट का? मैच देखना। अब वो तो स्टेट ऑफ थिंग्स है ही नहीं, मैच है ही नहीं आज। हाँ, ये कोरोनेशन प्रोसेस का ऐसे ही था कि वो किंग का राज्याभिषेक होता है ना, मैं उसको राजा बनाते हैं उस दिन। हाँ, डेथ और इनकैपेसिटी वेयर पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ अ पार्टी इज द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट है तो डेथ में खत्म हो जाता है। और आउटब्रेक ऑफ वॉर, अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू ड्यूरिंग द वॉर विद एलियन एनिमीज वॉइड एब इनिशियो, है ना? नो, अगर हम लोग ने एलियन एनिमी, एलियन मतलब फॉरेनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है तो वॉइड होता है, लेकिन एनिमी होना चाहिए। अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बिफोर द वॉर कमेंस बिटवीन द टू कंट्रीज एंड सब्सिक्वेंटली एट वॉर, जिसे ना ए एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट with B, a Chinese national. Okay. On 6th July. Okay. On 10th July क्या हुआ? War breaks out between India and China. War हो गया तो क्या करेंगे अभी? The contract is discharged due to impossibility of performance. समझा? तो वॉर से भी खत्म होता है, ऑब्जेक्ट से खत्म होता है, डेथ इनकैपेसिटी से खत्म होता है, चेंज ऑफ लॉ से और डिस्ट्रक्शन। तो ये अलाउड है कि ये सब चीजों से इम्पॉसिबल हुआ तो अलाउड है। हाँ, पर ये सब अलाउड नहीं है। ये समझा पांचों पॉइंट? और ये एग्जांपल लिख दो। अभी ये दिस इज नॉट अ ग्राउंड। Impossibility of performance is a rule, not an excuse from performance. Only physical or legal impossibility will excuse, मतलब possible नहीं करना। The physical or legal impossibility will excuse the parties. The performance of a contract should be impossible due to any of the circumstances mentioned above. ये 5 स्थितियों के कारण impossible होना चाहिए। The doctrine of frustration does not apply. Performance has become more difficult, तो difficulty does not excuse परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर बोलते हैं डायरेक्ट डिफिकल्ट हो गया अभी यार, कर सकता हूँ लेकिन डिफिकल्ट है तो नहीं, दो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होता। डिफिकल्ट है तो क्या कर तो सकते हैं ना, इम्पॉसिबल कहाँ है? कमर्शियल इम्पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट लिया कि आई विल कुक राइस एंड मेक बिरयानी फॉर 2000 पीपल एट ₹80 पर पर्सन। तो तुम लोग का उसमें कुछ प्रॉफिट था, 2000 आदमियों की बिरयानी बना के देंगे। बाद में राइस का प्राइस एंड राइस का प्राइस 4 गुना बढ़ गया। मिल रहा है 50 रुपए किलो राइस, 200 रुपए किलो हो गया। नाउ यू विल इंकर अ लॉस।
तो यू कैनॉट से कि मैं लॉस होगा तो मैं कैसे करूं. The performance of a contract cannot be excused on the ground that it is not profitable to perform the contract. Increase of wages, of price of raw material, unseasonable weather और lack of adequate profits, उससे परफॉर्मेंस. अगर हम बोलेंगे अभी कमर्शियल इम्पॉसिबल है, अरे वैसे तो पॉसिबल है ना, पैसा नहीं मिलेगा खाली और क्या. हाँ. स्ट्राइक, लॉकआउट्स, these events do not terminate the contract unless there is a clause in the contract providing that in such cases the contract is not to be performed. तो स्ट्राइक हो गया, लॉकआउट हो गया, लो कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता है. यू कैन नॉट से कि आई विल नॉट परफॉर्म. ये समझा तीनों. डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस, कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी, दीज आर एक्सक्यूजेस और नॉट एक्सक्यूजेस, पहले बताओ. These are reasons for non-performance. They will not be considered, not an, है ना. These are, हाँ, ये नहीं माना जाएगा ना, not reasons ना. हाँ. Failure of one of the objects when there are several purposes for which a contract is entered into. Failure of one of the objects, इसमें भी शिप का एक एग्जांपल दिया, लेकिन मैं बता रहा हूँ. सपोज से कमर्शियल इम्पॉसिबली सुनो, जैसे है ना, तुम लोग ने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया कि तुम लोग एक मशीन खरीदोगे 25,000 में और बोला मैं 30,000 में बेचूंगा. तो यू टोल्ड दैट टू अ पर्सन आई विल सेल फॉर 30,000 टू यू एंड परचेज एट 25,000, है ना. अभी तुम लोग ने बोला 30,000 में बेचूंगा, तुम लोग मार्केट में गए लेने और वो मशीन अभी 50,000 की हो गई है. तो कैन यू से दैट आई विल नॉट सेल एट 30,000. तुम लोग ने ऑलरेडी एग्रीमेंट किया 30 में बेचने का. अभी पहले 25 में आ रही थी, अभी 50 में आ रही है, लेकिन तुम लोग ने प्रॉमिस किया 30 में बेचूंगा, तो फिर 30 में देना पड़ेगा. यू कैन नॉट बैक आउट. ओके. लॉस हो तो हम क्या करें, है ना, ऐसे होता है. फेलियर ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है? when there are no not फ्यूचर कौन है, एग्रीमेंट है ना. एग्रीमेंट बाद में करेंगे तो प्रॉमिस भी तो फ्यूचर ही होता है और क्या. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट अभी कर दिया है, मैं 30 में लेके आता हूँ, परसों देता हूँ तेरे को 30,000 में, तो ये एग्रीमेंट हो गई है अभी. क्या एग्रीमेंट हो, 30,000 में दूंगा तेरे को कल, परसों दूंगा, नेक्स्ट वीक देता हूँ 30,000 में, तो ये एग्रीमेंट हो गई है. हाँ, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, करंट कॉन्ट्रैक्ट है. when there are several purpose for which, अभी there are several purpose. सपोज से वानखेड़े शहर में मैच है, वर्ल्ड कप फाइनल है, मैंने बोला तेंदुलकर खेलने वाला है, मैं जाके देखूंगा ऊपर से, आपके छत पे मुझे खड़े रहने का पैसा, मैं पैसा दूंगा 1,000 रुपया. अभी मैच हुआ लेकिन तेंदुलकर नहीं खेल रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि मैच का था. हाँ, तेंदुलकर इज वन ऑफ द ऑब्जेक्ट. व्हेन देयर आर सेवरल पर्पस फॉर विच द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड टू. मैच भी देखना था और तेंदुलकर को भी देखना था. फेलियर ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट. आया समझ में कि नहीं? तो ये कौन से ग्राउंड पे कैंसिल हो सकता है और कौन से ग्राउंड पे कैंसिल नहीं हो सकता है. When the common object of the contract can no longer be carried out, the court may declare the contract to come to an end. This is known as doctrine of frustration. इसको भी impossible ही बोलते हैं. कोर्ट बोलती है कि अभी कॉन्ट्रैक्ट करके कुछ मतलब नहीं है, ये सब सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी है, ये सब है ना, ये फ्रस्ट्रेशन के ग्राउंड्स, ये कुछ फायदा नहीं है. डिसाइड विथ रीजंस वेदर द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स आर वैलिड. ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है ना. विजय एग्रीज टू सेंड सेल अ ब्लैक हॉर्स
अननोन टू बोथ द पार्टीज द हॉर्स वाज डेड, तो ये इम्पॉसिबल है ना, और ये मिस्टेक भी है, दोनों में कैंसिल। सेक्शन 20 में बोल सकते हो ना म्यूचुअल मिस्टेक, और दूसरा बोल सकते हैं इट इज इम्पॉसिबल। एक्स एग्रीज टू राइट अ बुक, ये भी किया है। आफ्टर फ्यू डेज एक्स डाइज, ये किया ना हमने पहले। इम्पॉसिबल, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। स्टेट द ग्राउंड्स ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज, परफॉर्मेंस, म्यूचुअल एग्रीमेंट, इम्पॉसिबिलिटी, लैप्स ऑफ टाइम, ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ये ना इसके अंदर एक म्यूचुअल एग्रीमेंट में कितना नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रेमिशन, वेवर, बहुत सारी चीजें है कि नहीं। ये सब पढ़ा ना हमने। लैप्स ऑफ टाइम, बहुत नॉर्मल टाइम हो गया तो खत्म ना, फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते ना। ऑपरेशन ऑफ लॉ एंड ये रेमिशन यहाँ लिखा है इसने, तो यू कैन राइट दिस फर्स्ट आंसर, ऊपर लिखा है ना जो ये वाला, ये पूरा, और ये यहां से फिर इसमें एग्जांपल दे दो। एक हॉर्स को लेके चलो, हर टाइम मारो, जियाओ, बेचो, जो करना है हॉर्स के साथ, जो खिलवाड़ करनी है करो, अपना कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा ना। When the promisee, ये नीचे एक नेक्स्ट पैराग्राफ में, when the promisee neglects or refuses to afford promisor reasonable facility for performance of the promise, promisee नहीं दे रहा है, facilities नहीं दे रहा है, the promisor is excused। तो ये कौन सा चैप्टर हो गया अभी, ये रेमिशन किया, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये सब किया ना हमने, सब वही है स्टोरी। आया समझ में कि नहीं। तो कौन से दो चैप्टर हो गए हमारे भी, परफॉर्मेंस और डिस्चार्ज ना, 7 चैप्टर कर दिए हम लोगों ने। और क्या है अभी, रेमेडीज, तो ये रेमेडीज वी विल डू इट टुमारो। अभी कल है ना, मैं सुबह को लेक्चर रखता हूँ, शाम को कुछ भरोसा नहीं होता यार। हाँ, एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि कल सुबह को रखते हैं, और जिन लोगों को है तो रिकॉर्डिंग सुन लेना ना इसका, और अभी 3-4 चैप्टर बाकी है इसके, वो हो जाएगा। हाँ, व्हेन विल बी द नेक्स्ट टेक्स्ट, ट्यूसडे को 2 टॉपिक रखता हूँ ना, ये परफॉर्मेंस और डिस्चार्ज। ओके, हाँ, एंड डोंट वरी, मैथ्स का शॉर्टकट बताऊंगा तुम लोगों को,